So last lecture में we have given a question. क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन देखा था हमने लास्ट लेक्चर में. had asked you to solve given a parallelogram P, Q, R, S, I suppose, or A, B, C, D, whatever it was. One of the sides was given by represented by A vector, that was represented by B vector, and then I have asked you to find the diagonal PS vector, PQ vector, QR vector, SR vector, PS vector, PR vector, and SQ vector or QS vector, whatever. I don't remember what name I have given, but I have given a question like this. Right? So what is PQ vector in this figure? You have to express all of them in terms of A, B. A vector. A vector. Now what is Q? Correct. QR vector. What is QR vector? B vector. QR vector is same as B. Why B? Parallelogram. Sides, opposite sides of parallelogram are equal and parallel. So these two vectors are in same direction and have same magnitude. That means these two vectors are equal. So if this is B vector, even this is B vector. SR vector. What is SR vector? SR vector is same as A vector. What is PS vector? PS vector is B vector. Now what is PR vector? A vector plus B vector. See, this plus this. PQ plus QR is PR. So A plus B. This is A vector plus B vector. Now what is SQ vector? A vector minus B. Let's see how. See, PS vector is B vector. So if I reverse the direction, this will be minus B. So minus B plus A, see, is this. So SQ vector is minus B plus A, or A vector minus B vector. So SQ vector is A minus B. Okay. Then what you have to note here is, if two adjacent sides of any parallelogram be A vector and B vector, then the two diagonals are given by A vector plus B vector and A vector minus B vector. So if two adjacent sides of any parallelogram are A vector and B vector, then one of its diagonals is A plus B and other diagonal is A vector minus B. Okay, clear now? Yes. Okay, sure. Let's move to analytical method for finding sum of two vectors. So all we have seen now was graphical method. We used to draw graph to represent the two vectors, and then we used to shift head of one of them on tail of others, and then we used to use the scale to measure the magnitude and protractor to measure the direction. Now I'll see a method, formula method, where you will have magnitude of two vectors and you will have inclination between, that is angle between the two vectors, and a formula will be there where you will put the values and you will get the resultant. Okay, so we say analytical method to find sum of two vectors. And this is one of the important derivations also. Almost all school teachers ask in this exam, ask in the internal exams. Question would be like this: given two vectors A and B, Now let me ask the sense. Given two vectors A and B, क्या दिया हुआ? वो बोले दो वेक्टर दिया हुआ. What does that mean? Hello.
When I say given two vectors, जैसे coordinate geometry में बोलते हैं ना, given a point, that means what is given? Coordinates, coordinates. Point दिया हुआ है मतलब coordinates दिए हुए हैं. आप मुझे coordinate बता दो, मैं खुद point ढूंढ लूंगा, right? So if I say point is given, then coordinate is given. अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ वेक्टर दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ है? दो वेक्टर्स हैं, मतलब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिए हुए, राइट? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, कैसा डिस्क्राइब होगा मालूम है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज डिस्क्राइब, मतलब कुछ ऐसा लिखा हो शायद, डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इज गिवन. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, मतलब क्या दिया हुआ? भाई दो वेक्टर, उनके मैग्नीट्यूड. क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ, गिवन टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 17 न्यूटन, 10 यूनिट 17 यूनिट्स. One is directed along positive x-axis, other makes 30 degree clockwise with x-axis. So now you know direction of A and B both and magnitude of A and B both, right? So given two vectors means what is given? Their magnitudes and directions are given. अब देखो, दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बना रहे हैं, उनमें से एक इधर है एक इधर है, या तो फिर एक इधर है एक इधर है, या तो फिर एक इधर है एक इधर है, दोनों 60 डिग्री बना रहे हैं मैग्नीट्यूड. तो इसमें सारे केसेस में जो रिजल्टेंट आने वाला है ना, जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड सब में सेम होगा, राइट? सारे केसेस में मैग्नीट्यूड वुड बी सेम. रिजल्टेंट ये देखो सब जगह पे सेम आने वाला. समझा मैंने क्या बोला आपको? हाँ सर समझा, बट सर सेम क्यों आएगा? डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना. वही मैं बता रहा हूँ. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एक वेक्टर के इंक्लिनेशन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उन दोनों के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. आपने दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो नहीं चेंज किया, वो तो 60 डिग्री मेंटेन्ड है. You have not changed angle Yes, between sir. two vectors, right? It remains 60 degree. All you have done is दोनों का इंक्लिनेशन चेंज कर दिया. तो एंगल उनके बीच का 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स और ईच वेक्टर. इन फैक्ट इट डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट उनके दोनों के डायरेक्शन में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है एंगल में. तो क्या क्या पता है मुझे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज गिवन. ये मेरा इंटरेस्ट है, समझा? बिकॉज रिजल्टेंट एक्चुअल में अगर वेक्टर पता है मतलब उसका डायरेक्शन पता है, और दोनों का डायरेक्शन पता है मतलब उनका बीच का एंगल भी पता है, राइट? If I specify the two directions, then you will be able to find the direction angle between them. एक नॉर्थ ईस्ट है और एक साउथ है. What is the angle between north east and south? 135. So angle between two, if two directions are known, then you know the angle between them, right? But questions में आप ऐसे मत सोचने लगना कि सर ने तो बोला था दोनों की डायरेक्शन दी होगी, यहाँ पे तो दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ. तो भाई रिजल्टेंट को उन दोनों के एंगल से ही मतलब है, उनको एक एक की डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं. गेटिंग माय पॉइंट? तो क्वेश्चन में जो आपको लिखा होगा ना, ये मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट सारे स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स का एक कॉमन क्वेश्चन है. इफ इट इज देयर इन योर सिलेबस, अगर टीचर ने पढ़ाया है ऑनलाइन क्लास में, तो ये क्वेश्चन तो आप लिख के ले लो, हर बार आता है इंटरनल एग्जाम. दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता है, find magnitude and direction of resultant. ठीक है, एनालिटिकल मेथड से find analytically the magnitude and direction of the two, sorry, magnitude and direction of resultant of the two vectors. ठीक है. So वहां पे आपको दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड वी पता है, और उनके बीच का एंगल पता है. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा लेंगे. लेट अस ड्रॉ अ पैरेललोग्राम.
this is suppose a vector and this is suppose b vector and this is angle theta. यहाँ मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है. Let's name it as P, Q, R, S. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको एक्सटेंड किया, यहाँ मीट किया, ओके ठीक है. चलो अब ये फिगर में क्या क्या पता है आपको डिस्क्राइब करो. व्हाट ऑल थिंग्स आर नोन? PQ आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. तो PQ आपको पता है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. और क्या पता है आपको? पता है व्हाट इज PS? मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर. करेक्ट. ठीक है. SR आपको RQ पता है? SR पता है, ठीक है. SR भी मैग्नीट्यूड ऑफ A है. RQ पता है क्या? चलो QR पता है क्या? QR लेंथ की बात करूंगा. QR मैग्नीट्यूड ऑफ B mod of B. एंगल SPQ, एंगल SPQ आपको पता है कितना है? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा. एंगल RQT, RQT पता है आपको? RQT, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, दे आर थीटा. तो पैरेलल लाइंस है ना ये दोनों, और ये ट्रांसवर्सल है, सो दिस एंगल इज आल्सो थीटा. नाउ डू यू नो द लेंथ RT एंड QT? थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है. सवाल ये है, क्या आप RT और QT निकाल सकते हो? कैन यू डिटरमाइन लेंथ RT एंड QT? RT क्या होगा, QT क्या होगा? व्हाट इज RT? मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा. ठीक है. RT इज मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू sin थीटा. क्या समझ में आया सबको? अगर आप देखोगे यहाँ से, sin थीटा इज दिस बाय दिस, सो दिस इज दिस इनटू sin थीटा. चाहे तो मैं लिख देता हूँ, sin थीटा इज RT बाय RQ. RT is RQ sin theta. RQ is magnitude of B. So magnitude of B sin. Now QT. QT क्या होगा? Magnitude of B into cos theta. ये कुछ वैल्यूज पता है. अब मुझे बताओ, आप पता क्या करना है? पता क्या करना है आपको? PR is what you have to determine because this represents A plus B. So what you have to find is length PR, which is actually magnitude of A plus B. I hope याद है आपको. पिछली क्लास में हमने ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए थे. मैग्नीट्यूड ऑफ A plus B क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी. कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है. So PR is what you have to define. What else you have to find? Let me see who can say. Angle of PR with respect to A vector. A वेक्टर और B वेक्टर किसी के साथ में. भाई क्यों? मेरा इंटरेस्ट ये डायरेक्शन ढूंढने में. क्वेश्चन यहाँ तो फिगर मैंने स्केच किया हुआ तो आपको पता है, वहां तो ऐसा थोड़ी लिखा होगा. वहां लिखा होगा टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन and 80 न्यूटन are inclined at an angle of 60 degree. Find their resultant. तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और किसी एक वेक्टर 60 वाले के साथ या 80 वाले के साथ, किसी एक के साथ आपको उसका रिजल्टेंट का एंगल बताना पड़ेगा कि रिजल्टेंट इस वेक्टर के साथ इतना एंगल बनाते हुए इधर जा रहा है. राइट. सो लेट अस अस्यूम दिस एंगल इज अल्फा. तो मैं आपको अल्फा एंगल बता दूंगा. एंगल अल्फा, दैट इज एंगल रिजल्ट विच रिजल्टेंट makes with A vector. Yeah, alpha is the angle which the resultant makes with A vector. ठीक है. तो ये चीजें मुझे पता करनी, मुझे PR निकालना है, मुझे अल्फा निकालना है. ये दोनों चीजें निकालने में मेरा इंटरेस्ट है. तो चलो थोड़ी से बस फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई, इसके आगे सिर्फ मैथ्स है. तो इसके आगे मैथ्स अप्लाई करनी है आपको. आई होप आपको सब याद होगा. PR स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से PR स्क्वायर क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर इज PT स्क्वायर प्लस CR स्क्वायर. PT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर. राइट. PR square is PT square plus RT square. Yes. Now, what is PT? PT is magnitude of A plus QT. QT is magnitude of B into cos theta plus RT.
What is RT? RT is B sin theta का होता है. So this is a cos square plus 2ab cos theta plus b square cos square theta plus b square sin square theta. So it is b square cos square theta plus b square sin square theta. B square. B square common cos square theta plus sin square theta is also PR square. So what is PR? PR is root of a square plus 2ab cos theta plus b square. So a और b पहले से आपको पता है, थीटा आपको पता है, तो बस सब्स्टिट्यूट कर देना, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा. नहीं आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर. आएगा. तो अभी आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है. पहले जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता था 30 और 50 और 60 डिग्री, तो आप स्केल निकालते थे 30, फिर उससे प्रोटेक्टर से 60 डिग्री बना के 50 बनाते थे, फिर कंप्लीट करते थे, फिर स्केल से रिजल्टेंट मेजर करते थे. अब वो सब टाइम पास करने की जरूरत नहीं. इधर 30 डाल दिया, इधर 50 डाल दिया, 30 50 और थीटा 60 डाल दिया, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया. सो दिस इज एनालिटिकल मेथड. नहीं, सबसे पहले आपको मैंने ग्राफ के हेल्प से करना सिखाया, राइट, ग्राफिकल मेथड से. टोटल 4 मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, रिजल्टेंट निकाल लेंगे. सबसे पहले आपको सिखाया था ग्राफिकल मेथड, फिर उसके बाद है ये सेकंड मेथड. दिस इज बेस्ट नोन मेथड टू डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स. 2 वेक्टर्स को ही जब एट अ टाइम रिजॉल्व कर, मतलब ऐड करना हो, तो दिस इज बेस्ट मेथड. और सबसे ज्यादा यूज भी यही होता है. 11th में, 12th में, बहुत सारे टॉपिक्स में ये अप्लाई होता है. ठीक है, जब भी 2 वेक्टर्स बोलेंगे ऐड करो, ये फॉर्मूले से हम लोग ऐड करेंगे. मैथ्स में भी ढेर सारा यूज होता है, मैथ्स में भी वेक्टर्स है. ठीक है, सो जब भी आपको 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना, तो ये फॉर्मूला यूज करो. ठीक है, समझा? जब हाँ 2 सर. से ज्यादा रहेंगे, 3 4 5 वेक्टर एक साथ ऐड करने होता है, तब फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, तो फिर पॉसिबल नहीं है. अब बच गई बारी किसकी? अल्फा की. भाई मुझे एंगल भी तो बताना पड़ेगा ना आपको कि रिजल्टेंट किस एंगल पे जा रहा है. तो मैंने क्या आपको क्लेम किया था कि अल्फा इज द एंगल व्हिच रिजल्टेंट मेक्स विद ए वेक्टर, राइट. तो आई विल से tan अल्फा इज अपोजिट साइड RT by PT. तो RT पहले से ही पता है मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ V sin थीटा. PT पहले से पता मुझे, A plus B cos थीटा, A plus B cos थीटा. So tan alpha is B sin theta upon A plus B cos theta. A, B और थीटा पता है, ले सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो. तो ये हो गई मेथड आपकी, एनालिटिकल मेथड आपकी रिजल्टेंट निकालने की. जब भी ये मोशन इन प्लेन टॉपिक आता है सिलेबस में एग्जाम के लिए, ये टॉपिक जरूर वो लोग एग्जाम में डालते. ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ इससे हम लोग 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको समझ में आने लगे. एंड प्लीज सब लोग पार्टिसिपेट करना. न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला डेरिवेशन तो खैर आपके ऊपर है, कुछ इसमें मेमोराइज करना है, कुछ लॉजिक लगाना है. न्यूमेरिकल्स तो आपके पास फॉर्मूला है, तो सिर्फ लॉजिक लगाना है, तो इसमें आप लोग पीछे मत हटना. छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 and 40 unit make an angle of 60 degree with each other. Find magnitude and direction of result. Find magnitude and direction of result.